Can you hear me? It's okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's okay. Okay. Explore Commerce, an induction program for the students of junior college, especially for the newly joined students of Standard 11, is conducted with the aim to introduce our students of 11th standard to the field of commerce. Today, we are in the last leg of this 4-day program in which the subject Organization of Commerce and Management will be introduced to the students. Respected Principal Sir Dr. Sahibrab Chauhan, Supervisor of Junior College, Praveen Thakre Sir, Coordinator of the program, Kiran Chendra Ma'am, Ninad Kude Sir, Technical Convener of the program, and dear students, for introducing the subject of Organization of Commerce and Management, we are glad to have with us today Mrs. Captain Purnima Chute Ma'am. I welcome Ma'am and request Principal Sir, request Supervisor Sir Praveen Thakre Sir for his words of blessings to the students. नमस्कार मॅडम. Good afternoon, sir. गोसे वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये गत 4 दिवसापासून वर्ग 11वीच्या विद्यार्थ्यांना नवीन विषयाच्या संदर्भात मार्गदर्शन व्हावं यासाठी इंडक्शन प्रोग्रामचं आयोजन हे करण्यात आलेलं होतं. त्या संदर्भात जी आमची टीम आहे, प्राध्यापक किरण चेंद्रे मॅम, प्राध्यापक गौतम मॅम, प्राध्यापक निनाद खुळे सर यांनी हा जो प्रोग्राम आहे हा प्रोग्राम चांगल्या प्रकारे आयोजन केलं. त्याबद्दल मी सर्व प्राध्यापक वृंदांचं मनपूर्वक आभार मानतो. तसंच आज जो इंडक्शन प्रोग्राम आहे तो ओसी या संदर्भात आहे, तर ओसीचं मार्गदर्शन आपण करावं विद्यार्थ्यांना. त्याबद्दल आपल्याला सुद्धा धन्यवाद देतो आणि माझे शब्द थांबवतो. धन्यवाद. Thank you, sir. I would now like to introduce our keynote speaker, Mrs. Captain Purnima Chute Ma'am. Ma'am is working in the capacity of junior college teacher at Hislop College, Nagpur. Ma'am has been teaching students of the junior and senior college for the last 12 years. And it's indeed, it is a proud moment to introduce me, ma'am, as also in charge of the NCC unit for the last 10 years. And she is very much involved in the NCC activities and contributing towards building nation by guiding the cadets. Okay, ma'am, you'll be delighted to know that Praveen Thakre sir, our supervisor, he is also in charge of the NCC unit of GS College of Varda, and sir is doing exceptionally well in his field as well. Okay, so we welcome you, ma'am, and request you to guide the students. Okay, so you can start with your lecture, ma'am. Yes, ma'am. A very good morning to one and all. Firstly, respected Principal Dr. Chauhan, Principal GS Commerce, Varda branch. Thank you so much, sir, for giving me an opportunity to share my experience with dear students. Today, I am here to tell you about OCM subject. Dear students, the full form of OCM is Organization of Commerce and Management. पहले तो आप ये चीज याद रख लो कि हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. इट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. नहीं तो पूरे 2 साल आप लोग 12th पास हो जाते हो और आपको जब पूछा जाता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े तो आप सिर्फ यही बताओगे, बीकेएससी, एसपी, इको और ओसी. सिर्फ ओसी ही बोलते हो. इट इज नॉट ओसी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ये जो सब्जेक्ट है ये है कॉम्बिनेशन है, 2 चीज का कॉम्बिनेशन है. पहले तो कॉमर्स, फिर है मैनेजमेंट. इस सब्जेक्ट में हमारा जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इसमें 3 की वर्ड्स है. फर्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड जो वर्ड आता है वो आता है कॉमर्स.
और जो थर्ड वर्ड आता है वो आता है मैनेजमेंट। तो आप ये 2 साल में यानी 11th और 12th दोनों साल में इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले। बहुत सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है। सिर्फ ये 2 साल के लिए काम नहीं आने वाले, आगे आप फ्यूचर में जो भी करने वाले हो 12th के बाद उसमें भी आप देखोगे कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये आपके बहुत काम आएगा इवन इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। आप अगर कोई मार्केटिंग जॉब में हो, कोई मैनेजर बनोगे, कोई कंपनी संभालोगे, कोई बिजनेस करोगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी मैं आपको एक एक करके ये सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम 3 कीवर्ड्स बताए हमारे सब्जेक्ट में, ऑर्गेनाइजेशन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अभी पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या? ओके, आपने भी बहुत बार एक ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कुछ काम करना। आपने बहुत बार पार्ट लिया होगा गणेश उत्सव में, आपके घर में कोई छोटे मोटे फंक्शन हो गए तो सबने मिलजुल के कुछ ना कुछ काम किया होगा। तो यही जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट विल टेल यू अबाउट हाउ पीपल ऑर्गेनाइज या कम टुगेदर टू वर्क फॉर अ कॉमन मोटिव। यानी जो भी लोग काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका मोटिव कैसा होता है? कॉमन मोटिव होता है। जनरली जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन जब हम हमारे बेनिफिट के लिए जब हम काम कर रहे हैं या हमारे प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं तो हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मीनिंग के बारे में बात करें, हम मीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हु आर वर्किंग फॉर अ कॉमन पर्पस। मीन्स every person who is working in an organization should have a common motive, should have a common aim। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम आप हमको बता रहे हो कि कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी चीजों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? तो पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग, शुरुआत कहाँ से हुई है। अभी आप सब ने लॉकडाउन में बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत 10 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद बहुत लेजर टाइम मिला होगा आपको। जो हमारी एक्टिविटीज है, बहुत बच्चे घर में बैठे होंगे, मोबाइल देखा होगा, मम्मी से बात किया, फ्रेंड से मिले, जो भी है। तो क्या होता है, लेकिन आपके जो पेरेंट्स है, वर्किंग पेरेंट्स है, उनका काम या तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे या तो वो ऑफिस जाके काम कर रहे थे। तो हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उनको हम क्या करते हैं, 2 इसमें क्लासिफाई करते हैं। एक एक्टिविटी को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरे एक्टिविटी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इट इज ओनली फॉर आवर बेनिफिट, आवर प्लेजर। फॉर एग्जाम्पल, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, लुकिंग, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग, रीडिंग बुक्स, चिट चैटिंग, कुछ स्टोरी लिख रहे हैं, पोयम लिख रहे हैं, एंड सो ऑन। Whereas economic activity यानी क्या होता है? Economic activity is concerned with those activity which are done for earning money। पैसे कमाने के लिए जो भी काम हम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम हमारे कॉमर्स फील्ड में, अभी आप सब कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, हम सब किससे कंसर्न है? इकोनॉमिक एक्टिविटी से कंसर्न है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 इसमें क्लासिफाई करते हैं। आपने अकाउंट्स में भी सुना होगा, आपने इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा, एसपी में भी सुना होगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट मनी कंसर्न। ठीक है, तो अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 इसमें बाइफिकेट कर सकते हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है प्रोफेशन, एंड लास्ट में आता है आपका बिजनेस। अब एम्प्लॉयमेंट यानी क्या? एम्प्लॉयमेंट आप लोग को पता होगा, जब हम किसी के अंडर काम करते हैं और वो हमको जब सैलरी या वेजेस देते हैं तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। There are 2 person, एक employee और एक employer। Being a commerce student, you should know all these basic things। Employee कौन होता है? जो किसी के अंडर काम कर रहा है। Employer कौन होता है? जो जिसको काम दे रहा है और उसके काम के बिहाफ में उसको क्या पे कर रहा है? सैलरी पे कर रहा है या वेजेस पे कर रहा है। ओके, और फिर सेकेंड क्या बताया? प्रोफेशन।
प्रोफेशन यानी क्या, जब कोई अपना प्रोफेशनल या स्पेशल स्किल्स किसी चीज में यूज कर रहा है पैसे कमाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर्स। अब इन लोगों को हम लोग क्या पे करते हैं, वी आर पेइंग फीस। अब इसको हम फीस क्यों बोलते हैं, हम डॉक्टर को फीस क्यों पे कर रहे हैं, डॉक्टर को, लॉयर को फीस क्यों पे कर रहे हैं, हम उसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते, डॉक्टर का प्रॉफिट है, लॉयर का प्रॉफिट है, क्यों नहीं, क्यों फीस बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर, लॉयर्स या जो भी प्रोफेशनल है वो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते कि ये पेशेंट के लिए मुझे इतना कॉस्ट लगा, इसके लिए इतना कॉस्ट लगा, तो इसलिए उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीस। ठीक है। अब जो थर्ड जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे हम कंसर्न रखते हैं, दैट इज बिजनेस। ओके, नाउ व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेन मोटिव जो होता है हमारे बिजनेस का वो होता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, ना आप में से भी कुछ लोग आगे जाके कंपनी संभालोगे, मैनेजर बनोगे, या मार्केटिंग फील्ड में जाओगे, या अपना छोटा मोटा बिजनेस चालू करोगे, एंड सो ऑन। तो यू शुड नो व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब ये बिजनेस को हम आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। फर्दर क्लासिफाई क्या करते हैं, बिजनेस में पहले क्या होता है, प्रोडक्शन होगा, उसके बाद उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे मार्केट में। इसलिए जो बिजनेस जो पार्ट होता है उसको दो इसमें डिवाइड करते हैं, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा डिवाइड करते हैं कॉमर्स। देखो वर्ड आ गया कॉमर्स। ओके, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन का पार्ट चलता है कि यहाँ पे सारा प्रोडक्शन होने वाला है। अब कॉमर्स किससे रिलेटेड है, कॉमर्स इज रिलेटेड विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब कॉमर्स को भी दो चीज में बाइफरकेट करते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड एक्चुअली क्या हो रहा है, ट्रेड में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स होता है। ट्रेड्स के भी अलग अलग पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल जब आपने कभी सोचा है क्या, जब हम कोई हमारे ग्रोसरी शॉप या कोई डेली नीड्स के शॉप में जाते हैं तो वो कौन से टाइप का बिजनेस कर रहा है, या आप मॉल में जा रहे हो, बहुत जन विजिट करते होगे, मॉल में विजिट करते होगे या मल्टीप्लेक्स में विजिट करते होगे, तो कौन से टाइप का बिजनेस है। तो ये सारी चीजें आपको कौन से सब्जेक्ट में से पता चलेगी, ये सब डिटेल आपको पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से। अब हम बात कर रहे थे ट्रेड और एड्स टू ट्रेड की। ट्रेड को क्लासिफाई करते हैं दो इसमें, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है। अब होम ट्रेड यानी जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन द ज्योग्राफिकल लिमिट ऑफ वन कंट्री, दैट बिकम्स योर होम ट्रेड। ठीक है। फॉरेन ट्रेड यानी जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस विद इन बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज योर फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। आपने भी विजिट किया होगा, आप अपने घर के पास के शॉप में विजिट करते हो, दैट इज अ रिटेल ट्रेड। ठीक है। जब आप होलसेल मार्केट बल्क में जब चीजें खरीद, दिवाली अभी अभी रिसेंटली दिवाली गई है तो मम्मी ने बहुत सारा बल्क में चीजें खरीद के लाई होगी होलसेल मार्केट से, जहां रेट थोड़े कम हो गए रिटेल शॉप से, तो वो कौन सा ट्रेड हो गया, होलसेल ट्रेड हो गया। तो होम ट्रेड को किस में क्लासिफाई करते हैं, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड में। वैसे ही फॉरेन ट्रेड को क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री इंपोर्ट। इंपोर्ट यानी क्या, जब आप फॉरेन कंट्री से गुड्स हम हमारे कंट्री में खरीदते हैं, दैट इज इंपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी when we are selling our product to foreign country, that becomes your export, and our government tells our business person या इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। किस लिए होता है कि हमको हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है, या अभी मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की है कि मेड इन इंडिया, आप प्लीज अपने लोकल एरिया से ही चीजें खरीदो। इसलिए होता है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, हमारा जो करेंसी है वो फॉरेन कंट्री में नहीं जाना है। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या, इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी फॉरेन कंट्री में जाएगी, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री में आएगी और हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होंगी इससे। एंड अगर हम री एक्सपोर्ट या एंटरपोर्ट की बात करें तो क्या होता है, व्हेन वी आर परचेसिंग, यानी एक जगह से इंपोर्ट करके हमारे कंट्री में गुड्स लेके आए, उसको प्रोसेसिंग किया एंड फिर उसको एक्सपोर्ट करा फॉरेन कंट्री में, दैट इज एन एंटरपोर्ट। ओके,
Now I was talking about aids to trade or auxiliaries to trade. Auxiliaries to trade are those activity which helps to take trade smoothly, which helps trade to take place smoothly. इसमें क्या क्या चीजें आती है? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मर्चेंटाइल एजेंट, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में. ओके, अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी व्हाट इज कॉमर्स. आप मुझे पूछोगे कि मैम कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, कॉमर्स स्ट्रीम, आप सारे स्टूडेंट अभी कॉमर्स स्ट्रीम का पार्ट हो गया. यू विल बिकम अ कॉमर्स ग्रेजुएट आफ्टर 5 years, 11th 12th एंड बीकॉम के साथ फिर बाकी प्रोफेशनल जो भी डिग्री लोगे. लेकिन बेसिकली हर कोई क्या बनने वाला है? कॉमर्स ग्रेजुएट बनने वाला है. तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमर्स स्ट्रीम या स्टडी क्या होती है. तो कॉमर्स एज अ स्ट्रीम of education can be defined as a study of trade and business activity such as exchange of goods and services from producer to final consumer, and the motive behind that is to earn profit. क्या बताने वाले हैं आप? क्या ग्रेजुएट होगे तो आप क्या क्या चीजें सीखने वाले हो इसमें कि एक प्रोड्यूसर से लेके एक फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स कैसे रीच करता है और उसके पीछे का मोटिव क्या होता है. तो ओसीएम एज अ सब्जेक्ट, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फिर कॉमर्स में, है ना. सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ओसीएम जो सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है फिर कॉमर्स स्ट्रीम में. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. अगर आपने 12th में 11th में ही इसकी पकड़ अच्छी बना ली है ना, 11th में ही आप अच्छे से समझ लिए कि सब्जेक्ट क्या है, तो 12th में आपको थोड़ा इजी जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकोगे. जैसे आप अकाउंट्स में फुल स्कोर कर सकते हो, वैसे ही ओसीएम में बीइंग अ लैंग्वेज सब्जेक्ट स्टिल यू कैन स्कोर मोर देन 95 मार्क्स, टिल 99 मार्क्स, पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. इतना इजी और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हमारा. ओके, अब ओसीएम सब्जेक्ट किससे डील करता है? इट डील्स विद द ऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न बिजनेस. ओके, एंटरप्राइजेस. मॉडर्न बिजनेस कैसे होता है, एक एंटरप्रीनर कौन होता है, एंटरप्राइज क्या होता है, ये सारी चीजें. अगर आपने सोचा कि मुझे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डालनी है, तो यही से आपको बेसिक पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो, कौन सा मार्केट आपने सिलेक्ट करना चाहिए, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट कौन से जगह के लिए बनाना है, कौन से मार्केट में लाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, एंड सारी छोटी मोस्टली कैसे अकाउंटिंग करना है, वो भी सब कुछ हमको कॉमर्स स्ट्रीम में पता चल जाएगा. ओके, now the subject covers each features of a business firm as such as how a firm will be affected in different business situation. अब ये सब्जेक्ट में आपको पता चलेगा कि एक बिजनेस फर्म अगर है तो वो कौन से टाइप का बिजनेस फर्म है और वो बिजनेस सिचुएशन में कैसे कैसे अफेक्ट होने वाला है. जैसे अगर डाउनफॉल है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम है, तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे अफेक्ट करेगा, या कोई एक्सटर्नल एक्टिविटीज है वो उससे कैसे अफेक्ट होगा आपका बिजनेस, एंड सो ऑन. ठीक है, द मेन एरिया ऑफ स्टडी इन द सब्जेक्ट involves business organization, their various features, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है सब्जेक्ट में कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फीचर्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होने वाली है, उसका ऑपरेशन कैसा होगा, उसका मैनेजमेंट कैसे होगा. एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सब्जेक्ट का, दैट इज ओसीएम हेल्प्स इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. आपको ये सब्जेक्ट ऐसे मास्टरिंग कराएगा कि आप आगे जाके खुद का बिजनेस कैसे कर पाओगे. या अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे तो अगर आप कोई एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हो तो आप किस तरीके से कैसे काम करोगे कि आप अपने करियर में एक्सेल कर पाओ. ओके, OCM subjects bring students abreast with the corporate culture and prepares them for their professional life. अब ये OCM सब्जेक्ट आपको क्या करवाएगा? कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड है, बिजनेस है, कंपनीज है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाएगा, उसके कल्चर से इंट्रोड्यूस कराएगा, उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होती है उससे इंट्रोड्यूस कराएगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको हेल्प करेगा. ठीक है,
अब ये हमारा इम्पोर्टेंस हो गया। अभी थर्ड जो चीज थी वो थी मैनेजमेंट। ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइजेशन। हम कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। पहले हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या होता है, फिर हमने देखा कॉमर्स यानी क्या, हमारा ओसीएम सब्जेक्ट यानी क्या, उसके क्या इंपॉर्टेंस। अभी मैं आपको बताऊंगी मैनेजमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर सब्जेक्ट, जो आपको बाकी सब्जेक्ट में नहीं पता चलने वाली है। ठीक है, अब मैनेजमेंट वर्ड को अगर आप स्प्लिट करो तो उसमें क्या मिलेगा आपको? मैन, एज और मेन। ठीक है, MAN, मैन, एज और मेन। यानी ओवर द इयर्स इंसान को पता चला है कि वो अकेले मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकता है, उसको किससे काम करना है? मिलजुल के सबके साथ काम करना है, तो ही वो अपने लाइफ में प्लस अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का अगर सिंपल सा डेफिनेशन आपको मुझे बताना है तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। आप अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीजें मैनेज करते होंगे। फ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो मम्मी पापा को क्या बताना ये दिमाग में चलते रहता है, वो चीजें मैनेज करते हो, टाइम मैनेज करते हो, अपनी स्टडीज मैनेज करते हो। तो इन सिंपल वर्ड जब हम कंसर्न करते हैं हमारे सब्जेक्ट में, तो मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज getting things done by others. It is an art of getting things done by others. अब यहाँ पे आर्ट वर्ड आया, आपने अपने घर में भी एक्सपीरियंस किया होगा। जब आपकी मम्मी कोई काम बताती है या पापा कोई काम बताते हैं या भाई बहन, कोई बड़े भाई बहन काम बताते हैं, तो तीनों के बात करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। और जिसने बहुत अच्छे से या आपको कुछ चीज रिश्वत दी होगी कि भाई ये काम कर ले, मैं आपको ये दूंगा, तो आप उसका काम सबसे जल्दी करोगे। और जिसने बहुत रूडली बात किया कि ये नहीं, तुझे ये काम करना ही है, तो आप बोलोगे कि नहीं बाबा, मुझे तो इसका काम बिल्कुल नहीं करना है, या बाद में देखेंगे जब हमको टाइम मिलेगा तो करेंगे। तो इट इज एन आर्ट टू गेट, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। आप बीइंग अ मैनेजर, आप किस तरीके से दूसरों से काम कराने वाले हो, दिस इज बीन टोल्ड बाय द पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ आवर सब्जेक्ट ओसीएम, दैट इज मैनेजमेंट। में आपको पता चलेगा आप किस तरीके से किसी और से, अब जब मैनेजर बन जाओगे तो आप कैसे काम करने वाले हो या कैसे काम आपको करवाना है किसी और से। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पहले तो इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे मैनेजर हो, तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सकता है? अचीव हो सकता है। और अगर आप बहुत रूड मैनेजर हो, बहुत बुरी तरीके से अपने एम्प्लॉयज को ट्रीट करते हो, तो आपके गोल्स अचीव नहीं होने वाले। दूसरा, मैनेजमेंट आपको बताता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या? पूरी तरीके से जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उसको कैसे आपको यूटिलाइज करना है। अब हम जो रिसोर्सेज यूज करते हैं उसको हम क्लासिफाई करते हैं दो चीज में, एक ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा क्लासिफाई करते हैं मटेरियल रिसोर्स। ठीक है, अगर आप MBA प्लान कर रहे हो करने का आपके ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको एक स्ट्रीम मिलेगी HRM की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वहां पता चलता है ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे रहना है। अब मैंने दो रिसोर्सेज के बारे में बात किया, ह्यूमन रिसोर्स प्लस मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स हु आर वर्किंग अंडर यू। Material resource is the material or raw material which you are using. एंड मैनेजमेंट में जब आप पढ़ोगे या OCM में आप पढ़ोगे कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं दैट शुड बी यूज्ड फुल्ली। अगर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है तो आपका जो प्रॉफिट लेवल रहेगा वो क्या होगा? हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर वही आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो, ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रिसोर्स अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आप देख सकते हो कि आप कहीं ऑफिस में जाओगे तो उनका वर्किंग टाइम 10 to 5 है, अगर हाफ एन आवर का लंच ब्रेक है तो वो इंसान जो जगह पे होना है वो 1.5 घंटे से लंच ब्रेक लेते रहता है। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एक्चुअली वेस्टिंग देयर टाइम। आपको पेमेंट तो पूरा आप दे रहे हो, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग, द रिसोर्स which the work which should be done in that time that is being wasted. Similarly, the raw material which has to be used, अगर उसका वेस्टेज हुआ तो प्रोडक्शन कम होगा एंड अल्टीमेटली विल रिजल्ट इन द लेवल ऑफ प्रॉफिट, मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। देन आपको मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। ओके, फिर
एक एस्टैब्लिशमेंट, इट एस्टैब्लिशेस अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड रहने वाले हैं, किस किस से कनेक्ट रहते हैं? कंज्यूमर से कनेक्ट हो, आपके इन्वेस्टर से, आपके ओनर से, गवर्नमेंट से, सोसाइटी से। तो इन सब के साथ आप कैसे आपका हार्मोनी यानी आपकी पीस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली चले, वो आपको मैनेजमेंट के थ्रू पता चलेगा। एंड लास्ट में इक्विलिब्रियम कैसे बैलेंस करना है कि मार्केट में जितना डिमांड है, सप्लाई है, उसको कैसे इक्विलिब्राइज करे, आपका टाइमिंग कैसे मैनेज करे, कौन सा चीज़ को प्रोड्यूस करे, कौन से चीज़ को कौन से प्लेस में आपको लॉन्च करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको और सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से पता चलेगी। आई होप अभी तक आप क्लियर हो गए होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट में हम किस किस चीज़ से डील करने वाले हैं। नाउ आई टेल यू अबाउट द सिलेबस which will be covered under organization of commerce and management in 11th standard. Okay, तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक कवर होने वाला है 11th स्टैंडर्ड में, इट विल बी रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आपको पता चलेगा कॉमर्स क्या चीज़ है, बिजनेस क्या है, बिजनेस को कैसे क्लासिफाई करके इंडस्ट्री एंड कॉमर्स लाया, इंडस्ट्री को कैसे क्लासिफाई कर दिया, और फिर कॉमर्स को कैसे ट्रेड और एड्स टू ट्रेड में क्लासिफाई किया, फिर ट्रेड को हमने क्लासिफाई किया होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड एड्स टू ट्रेड में क्या क्या एक्टिविटीज आती है। फिर सेकेंड टॉपिक में ट्रेड है। ट्रेड में आप पूरे डिटेल में पढ़ोगे कि सिर्फ रिटेल ट्रेड यानी क्या, कि मार्केट में गए छोटी छोटी दुकान है, वो सिर्फ रिटेल ट्रेड नहीं होता है। जो ठेले वाले होते हैं, जो सर पे सामान लेके जाते हैं, जो साइकिल पे सामान लेके जाते हैं, वो सारे भी रिटेलर्स होते हैं। अब ये रिटेलर्स को क्या बोलते हैं, ये मुझे लगता है आप लोग को अभी तक नहीं मालूम होगा, लेकिन जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ोगे ओसीएम का तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि रिटेलर्स है, जो रिटेलर्स है, पर्टिकुलर रिटेलर्स को क्या बोलते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर्स यानी क्या होता है, लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स यानी क्या होता है, फिर होलसेल ट्रेड क्या होता है, ये सारा टॉपिक कवर होने वाला है आपका सेकेंड चैप्टर में। अब जब आप थर्ड चैप्टर पे जाओगे, इट इज अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। अब ये चैप्टर में आपको डिटेल में पता चलेगा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होती है, बिजनेस क्या होती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। ऐसा नहीं है कि आज मैंने यहाँ बैठे बैठे सोच लिया कि मुझे एक इंडस्ट्री डालनी है, मुझे एक बिजनेस डालना है तो बस मेरा इंडस्ट्री खुल गई, मेरी बिजनेस खुल गई, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो फेस करने पड़ते हैं इंडस्ट्री खोलने के पहले प्लस इंडस्ट्री खोलने के बाद। ओके, तो ये चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, कैसे आप आउटब्रेक करोगे चैलेंजेस को, कैसे अपने लाइफ में एक इंडस्ट्री अगर आपने सोची है, जरूरी नहीं है कि आप अर्बन सिटी में ही रहो, आप अगर विलेज में भी हो या कोई रूरल एरिया में भी हो, तो वहाँ के भी जो लोकल रॉ मटेरियल्स है उसको लेके आप कैसे आपकी छोटी सी इंडस्ट्री डाल सकते हो, आपका बिजनेस चालू कर सकते हैं, ये सब चीज़ आपको पता चलेगी आपके थर्ड चैप्टर में। एंड दी फोर्थ जो चैप्टर है वो बताता है आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन को हमने किस में क्लासिफाई किया था, प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट। जनरली क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन करके हम उसको डिवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, whereas the public sector organization का मेन मोटिव होता है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू दी सोसाइटी। अब ये प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर 5 ऑर्गेनाइजेशन आता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल ट्रेडिंग कंसर्न यानी क्या, सिंगल पर्सन अगर कोई बिजनेस कर रहा है, दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। वेयरएज पार्टनरशिप फर्म इज व्हेन 2 or more person come together to perform any business, that is your partnership firm. Then if we talk about cooperative society, it is थोड़ा different है cooperative society बाकी इससे, क्योंकि इसका main motive होता है to provide services and the second motive is to earn profit.
Okay, when group of people come and form a cooperative society which helps the backward or weaker section of society, it is a cooperative society. And joint stock company is a company where the capital has been divided into shares. आप shares खरीद सकते हो, invest कर सकते हो. अब जब share खरीदा तो you become a shareholder and you become the owner of the company. It is termed that the shareholders becomes the owner of the company. अब उसके बाद का जो chapter है, that will tell you about the second part of forms of business organization, that is public sector organization. Okay, now public sector organization का main motive क्या होता है? To provide services to the society. वो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज. ओके, उसके बाद का जो चैप्टर है वो है इंस्टीट्यूशन विच आर हेल्पिंग सपोर्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज. ओके, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ से लोन ले सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. उसके बाद नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट. फिर आता है KYC. उसके बाद आता है वुमेन सेल्फ हेल्प, दैट इज महिला बचत गट. आपके मम्मी भी, बहुत सारे लोगों के मम्मी ऐसे होंगे जो कंट्रीब्यूट करती होगी महिला बचत गट में, और छोटा मोटा जब लोन, घर में कुछ काम है तो वहां से वो लोन ले लेते हैं, दैट इज महिला बचत गट. ओके, उसके बाद आता है वर्ल्ड बैंक. फिर अब जब इकोनॉमी या बड़े पैमाने में, लार्ज स्केल में, इफ लोन इज रिक्वायर्ड, तो वर्ल्ड बैंक इज देयर टू हेल्प द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन विद. उसके बाद का जो चैप्टर है, इट इज अबाउट, it will tell you, just a second, it will tell you about business environment, कि what type of business environment are there. Internal environment plus external environment. Internal environment are those environment which you can control, but external environment are those environment which you cannot control, जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं. उसके बाद आएगा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर, जहां आपको मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, नेचर क्या है. इट इज सेड दैट मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, यानी हर जगह आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ तो आपको मैनेजमेंट मिलेगा. आप कहीं पे भी कुछ भी काम करो तो यू रिक्वायर द स्किल ऑफ मैनेजमेंट टू मैनेज थिंग्स. ओके, उसके बाद जब आप 12th में जाओगे तो अगेन यू विल हैव certain topics of management. You will have topics like what is an entrepreneur. Entrepreneur is a person who is an innovator, who is going to bring new ideas in the market. Plus you will come to know about business services like banking, transportation, warehousing, communication, and so on, which is going to help you in conducting or performing your business activities if you are planning to become a businessman, if you're planning to become an industrialist, or if you're planning to do any type of job, you will come to know about the related activities which are going to affect you in your professional life. Then you will come to know about consumer rights. ठीक है, अब आप being a commerce student, you should know who is a consumer and who is a कस्टमर. बहुत बेसिक सी चीज है कंज्यूमर एंड कस्टमर, लेकिन हर टाइम बच्चे, स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि कंज्यूमर कौन होता है और कस्टमर कौन होता है. कस्टमर्स आर दोस person who are purchasing thing, whereas consumer are the final person who is going to consume your thing or who is going to use your thing. अब नाउ हमने बात किया था बिजनेस. व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दो चीज आ रही थी हमारी, गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, अब गुड्स अगर हम बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. कंज्यूमर गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मिल्क, पेंसिल, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन, विच अ फाइनल कंज्यूमर इज यूजिंग. whereas capital goods are those goods which are used or which are helpful in producing something or which are helpful in producing consumer goods. For example, machinery, plant, furniture, and so on. And if we are talking about services,
सर्विसेज आर इनटैंजिबल नेचर। आप कुछ चीज जब आप सर्विसेज अवेल करते हो तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर पेइंग थिंग्स लेकिन आप कुछ लेके नहीं जा रहे। फॉर एग्जांपल हम जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम डॉक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, या कोई होटल रूम में जा रहे हैं, आपने रूम बुक किया, अब वो रूम का पेमेंट तो कर देते हो लेकिन वो रूम आपके नाम का हो जाएगा क्या? नहीं, यू आर अवेलिंग दी सर्विसेज विच आर होटल इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग विथ यू। ठीक है, अब आप कॉमर्स करने के बाद आप क्या क्या चीजें, क्या प्रोस्पेक्टिव है, आप क्या क्या चीजें आगे पढ़ सकते हो बीइंग आफ्टर बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट। 11th-12th कॉमर्स करने के बाद तो मैक्सिमम लोग बीकॉम करने वाले, बीकॉम इज बैचलर इन कॉमर्स। ठीक है, तो you all are going to become a bachelor in commerce or you are going to become a commerce graduate। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके साथ आप CA कर सकते हो, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। उसके साथ आप क्या कर सकते हो, BBA कर सकते हो। आप 12th कॉमर्स के बाद आप BBA कर सकते हो, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके साथ आप कर सकते हो CS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी जब कंपनी में होता है तो उसके क्या काम है, उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस, क्या लॉज होते हैं, वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। अब हाई प्रोफाइल जॉब वी कैन से। देन यू कैन डू ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर सकते हो। देन यू कैन डू LLB, दैट इज लॉ ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। देन यू कैन डू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो कर सकते हो। ICWA कर सकते हो, सर्टिफाइड फाइनेंस प्लानर्स बन सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो कितना फाइनेंस है, कैसे कहाँ यूज होने वाला है, कहाँ फाइनेंस कहाँ ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। देन जो नया टेक्निक अभी आया है दैट इज डाटा साइंस एंड डिजिटल मार्केटिंग है, वो आप कर सकते हो। आप भी बहुत जन आप देखते होगे, फेसबुक यूजर्स हो गए या यूट्यूब में कभी चैनल में आपने वीडियोस देखा होगा तो बहुत बार एडवर्टीजमेंट आना शुरू हो जाती है। तो दैट इज अ न्यू कंसेप्ट विच हैज अरोज, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। कि आप हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच बीइंग सिटिंग इन वन प्लेस, हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच टू दी ग्लोब। एक जगह पे बैठ के आप पूरे ग्लोब में पूरे सब जगह पे आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर सकते हो, दैट इज व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हो। एंड यू कैन बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग, यू कैन बिकम अ प्रोडक्ट डिजाइनर ऑल्सो। प्रोडक्ट डिजाइनर क्या, आप अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आर सब्जेक्ट दैट इज आर OCM सब्जेक्ट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैक्सिमम बेस्ड होते हैं OCM सब्जेक्ट में, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट आता है, इसमें अबाउट मार्केटिंग आता है। मार्केटिंग अभी नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है OCM में। इट टेल्स अबाउट डिटेल थिंग्स अबाउट मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's: प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस and price। कि what product should be there, what place it should be promoted, what should be the price and how you are going to promote it। ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग में पता चलेगी। तो जो ये हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लस वेरी scoring subject। You can score maximum marks if, and you will find it very very interesting and relative to your nature। आप अगर बहुत अच्छे से अगर आप इसको सुनोगे तो you from now itself you can decide कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो। You can give your competitive exam, for example बैंक के एग्जाम दे सकते हो, रेलवेज के एग्जाम दे सकते हो, एंड बाकी जितने भी सिविल सर्विस एग्जाम है, UPSC है, MPSC है, इन सब के लिए आप प्रिपेयर करोगे तो आप फाइंड करोगे कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मोर ओवर आपके कॉलेज में NCC है विच इज ऑल्सो, आप 12th के बाद NCC ज्वाइन करो, वो आपको और हेल्प करेगी। इट इज नॉट, बहुत छोटा सा वर्ल्ड नहीं है कॉमर्स, इट इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, बहुत ज्यादा। और आप अभी देखोगे कि बहुत ज्यादा डिमांड है कॉमर्स ग्रेजुएट की। जो नया फ्यूचर आने वाला है ना, इट विल बी बेस्ड ऑन कॉमर्स ग्रेजुएट इटसेल्फ। तो फर्स्ट आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू टू चूज कॉमर्स एज योर स्ट्रीम। आप कॉमर्स ग्रेजुएट बनने वाले हो, यू आर गोइंग टू बिकम द पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी को आप बहुत ज्यादा आगे जाके स्ट्रेंथन करने वाले हो। आई होप मैंने जो आपको बताया उससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज OCM सब्जेक्ट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। लास्टली I thank Dr. Chavan, Principal, GS Commerce College, for giving me opportunity
to share my experience with the students, with dear students. We call students as our friends. Student friends होते हैं हमारे. अगर हमारा रेपो अच्छा बन गया तो it becomes easier for them to understand what we are telling them. अगर हमारी लैंग्वेज एंड बॉन्डिंग बन गई तो इट बिकम वेरी ईजियर, स्मूथली ये 2 साल में आपको पूरे सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर choosing your career, choosing your professional life in future. Then I thank Professor Mrigi ma'am, the coordinator, for selecting me to share my experience. I thank Professor Praveen sir for giving me a chance and opportunity to share my experience with all of you. Thank you so much, ma'am. Hello, Mrigi ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for such an elaborative sharing of experience and knowledge about the subject. Okay, definitely our students are going to benefit from it. Okay. Now I call upon Kiran Chandra ma'am, who is the coordinator of this program, to propose the vote of thanks. Thank you so much, ma'am. Sorry, I forgot your name. Sorry, ma'am. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity to propose vote of thanks. GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने जो इंडक्शन प्रोग्राम यहाँ लिया है 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए जो इस कॉमर्स फील्ड में नए हैं, उनको जो कॉमर्स के मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज प्राप्त हो, इसके लिए हमने ये इंडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जो 7 तारीख से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका आज ये लास्ट सेशन था मैम। तो इसके लिए जो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, आभार मानते हैं। थैंक यू सो मच सर। उसके बाद इंडक्शन सीरीज में जो 3 की स्पीकर थे, घैसास सर, उसके बाद चेतन परेड़ीकर सर, प्रणाली मैम, और आज के जो की स्पीकर है वो है कैप्टन पूर्णिमा चुटे मैम, जो हिस्लॉप कॉलेज से हैं। उन्होंने एग्जैक्टली प्राइमरी स्टेज से बच्चों को करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ तक की मिल सकती है इसके बारे में बहुत सुंदर गाइड किया। उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया व्यक्त करते हैं मैम। साथ ही इस प्रोग्राम में मेरे साथ कोऑर्डिनेटर थे मृगी गौतम मैम, टेक्नीशियन थे निनाद खुड़े सर, IPSC कोऑर्डिनेटर परीक्षित अग्रवाल सर, साथ ही जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेस करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, उन सब का मैं तहे दिल से अपने कॉलेज की ओर से आभार मानती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल। Thank you, ma'am.